Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars, and this is the class 3 of arithmetic progression, and in this class we'll discuss the question on sum of n term. And to find the sum of n term, first we have some value. First term, suppose we have an AP a plus d, a plus 2d and so on. Suppose the last term is an, or the last term is simply known as L. So you have to find the plus or the sum of all of these terms. So sum is denoted by S and we are finding the sum of n terms. So this is denoted by Sn, and this is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, or sometime you can write it as Sn is equals to n by 2. Now look at here carefully. You can divide this 2a into a plus a. Okay, and this n minus 1 into d is same. So a plus n minus 1 into d is equals to the nth term, which is the last term. So you can write here a plus an, or n by 2 a plus L, because sometimes d is not given, only the first and last term is given and the number of term is given, and we have to find the sum of n terms. So in that case we should apply this formula n by 2 a plus L. Okay, so we have two formula for Sn. One is this, basically this is only the one formula. They have changed a plus n minus 1 into d by L. Okay, so let's discuss some question on this topic. Question is, how many terms of AP 9, 17, 25? Nine, 17, 25, so on. Form the sum 636, I think. Must be taken to give a sum of, a sum equal to 636. So we have to find n here, because we have to find how many term. That means I have to find the value of n. So here I have a is equals to 9, d is equals to 17 minus 9, which is 8, and n question mark, because I have to find this value, and Sn is equals to 636. So what is the formula for Sn? That is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So 636 is equal to n by 2, 2 into 9 plus n minus 1 into 8. So here 636 is equals to n by 2, and take 2 common, because you can see here 9 into 2, यहाँ पे 2 कॉमन है, एंड n माइनस 1 इंटू 8. तो सेकेंड टर्म आपकी n माइनस 1 इंटू 8 है, तो 8 में से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? ओनली 9 इज लेफ्ट हियर, एंड प्लस यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा आपका 4 इंटू n माइनस 1, विच इज 4n माइनस 4. ठीक है, और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. देखो यहाँ पे 4 बचेगा, उस 4 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई भी कर दी है, 4n माइनस 4. So 636 n into 4n plus 5. Now multiply this n with the bracket, it gives you 4n square plus 5n, and take this to the right hand side. So this is minus 436 is equals to 0. Now it is a quadratic equation in n, and you can find the value of n by splitting term or by Sridhara Acharya formula. So
I'm applying the formula directly here, which is x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac square root upon 2a. So this is equals to x is equals to minus 5 plus minus b square, that is 25 minus 4c minus 636 upon 2a, that is 2 into 4. So x is equals to minus 5 plus minus 25 minus minus gives you plus, and 4 4s are 16, and 16 multiplied by 636 gives you this, divided by 8, and you have to add 25, so this gives you 11, 9 and 10, 2, 0, 1 divided by 8. Now you have to find the square root of 10201. So by division method you can find the square root of this. आपको पेयर बनाने हैं जहाँ पे नंबर आपका एंड होता है वंस प्लेस से, एंड आपको जो टेबल रीड करना है 1 का 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, बिकॉज आप स्क्वायर करते हो. सो 1 1 ज़ा 1 0 है. अब आपने 0 2 नीचे उतारा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका क्वोशंट होता है उसका ट्वाइस यहाँ पे हो जाता है. अगर आप यहाँ पे 1 टाइम भी इससे कैंसिल कर रहे हो तो वो 1 आपको यहाँ पे भी राइट करना होता है, उसका यूनिट प्लेस आपको 1 बनाना पड़ता है, तो कैंसिल नहीं होगा. सो 0 ज़ा भी नहीं होगा. 0 लगा के आपने 1 उतारा, नाउ 1 ज़ा, सो 2 0 ज़ा 1. भाई 0 लगा के फिर आप एक नंबर नीचे उतार, तो अब यहाँ पे तो आपका पेयर में नीचे उतरेगा हर बार. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 101. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8. सो x इज इक्वल्स टू minus 5 minus 101 by 8, and second is minus 5 plus 101 by 8. So this is minus 106 by 8, और n की वैल्यू आप निकाल रहे हो बेसिकली यहाँ से. n की थी ये वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में थी. सो n की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. सो ये वैल्यू तो आपकी हो नहीं सकती है. एंड सेकेंड वन इज minus 5 and plus 101, it gives you 96 upon 8. So this is equals to 12. So n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 12. So आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है. Since the value of n is always positive. नंबर ऑफ टर्म भी कभी आपका नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, आगे की तरफ आपका एपी बढ़ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव. एंड इंटीजर भी होती है, पॉजिटिव एंड इंटीजर. सो n इज इक्वल्स टू 12. तो कितनी टर्म का सम होना चाहिए हमारा, 636. आपकी एपी गिवन थी 9, 17 एंड सो ऑन. सो आपकी 12 टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू है 636. ठीक है. अभी और भी क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से लिए मैंने. सो n की वैल्यू आपने यहाँ से क्या सीखा है कि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकती और कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपकी क्या होगी, इंटीजर
and positive. So second question है, if sum of first n term of AP is 4n minus n square, what is the first term? So सबसे पहले आपको a निकालना है. What is the first term? And what is the sum of first two term? So मैं लिख दूं a1 plus a2, है ना, और आप यू कैन राइट इट s2 आपको निकालना है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है तो सिर्फ मैंने आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखा दिया. एंड आगे पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म. सो यू हैव टू फाइंड एंड थर्ड, 10th and nth term. Not you have to find the sum of the 3 term or sum of the 10 term or sum of the nth term. You have to find the term a third, a 10 and a n. So here we have only the formula for Sn. Okay. So basically Sn is equals to 4n minus n square. And with the help of this only, we are going to find a1 plus a2, then a3, a10 and an. देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी प्लेस कर सकते हो, 1 से शुरू करोगे. 4n इज इक्वल्स टू 1. सो n इज इक्वल्स टू 1 का मीनिंग क्या है? द सम ऑफ वन टर्म. सो सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है? a1. a1 को किसी में ऐड नहीं कर रहे हो, द सम ऑफ वन टर्म. सो दैट मीन्स s1 जो आपका होगा, जब आप यहाँ पे 1 रखोगे, वो किसके इक्वल होगा? a1 के इक्वल होगा. और यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे 1 तो जाएगा 4 माइनस 1 3. ठीक है, तो आपके पास यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गई. ठीक है, जब भी आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो s2 कितनी टर्म का सम होता है? 2 टर्म्स का. सो a1 प्लस a2. ठीक है, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 रखो जरा वैल्यू, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4. 8 माइनस 4 इज 4. आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो. ठीक है, सो ये एक तो आपको ये निकालना था, एक आंसर तो आपका ये आ गया, क्योंकि उन्होंने पूछा था फाइंड द सम ऑफ 2 टर्म्स, दैट मीन s2. सो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, a1 प्लस a2 में से a1 को माइनस करोगे, so what we have a2. so s2 minus s1 is equals to किसके होता है? a2 के. and is equals to किसके? 1. 4 minus 3 is 1. so मेरे पास a1 आ गया, मेरे पास a2 आ गया. तो अभी मुझे आगे निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसको मैं a ले सकती हूँ. और इसमें से सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? कॉमन डिफरेंस निकलता है. ठीक है, आगे हमें निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक बार बता देते हैं आपको, ताकि आगे के लिए क्लियर हो जाए. और एक फॉर्मूला भी फॉर्म कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि s2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू a2. तो अगर आप s3 निकालोगे, s3 आपका क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड इट इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 स्क्वायर 9. 12 माइनस 9 इज 3. बट अगर आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास क्या आने वाला है? a3. दैट मीन्स यहाँ से s3 माइनस s2 इज इक्वल्स टू a3. तो क्या मैं इन जनरल एक फॉर्मूला नहीं बना सकती? यहाँ से बिल्कुल बना सकते हैं. क्या? Sn माइनस उससे एक कम. यहाँ पे क्या होता है? S3 में से S2 माइनस होता है ना, तो Sn में से किसको माइनस करोगे? Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An. तो जब भी आपको
सिर्फ क्वेश्चन एस एन के लिए गिवन हो एंड दे आस्क द AP or some term of AP, you can put this formula in that question. Sn minus Sn minus 1 is equals to An. ठीक है, तो यहाँ से A3 कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा S3 माइनस S2 एंड S3 है आपका 3 और S2 है आपका 4. दैट मीन्स A3 क्या आ गया मेरे पास, -1. तो क्या मैं अभी A10 तक ऐसे जाऊंगी, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कुछ करने की, क्योंकि नाउ आई हैव A which is 3, then A2 is 1, A3 is -1 एंड यू कैन सी हियर D कितना आ रहा है. अगर आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है, -2. सो हियर A is equals to 3 and D is equals to -2. So जो भी आपसे पूछा है you can find that very easily with the formula of AN, which is A plus N minus 1 into D. So if you have to find A10, this is equals to A plus 9D, because A कम हो जाता है, N minus 1 हो जाता है. ठीक है, so the value of A is 3 and D is -1. So 3 minus 9 -6. So A10 की वैल्यू कितनी आ गई, -6. Now you have to find AN. ये हो जाएगा A plus N minus 1 into D into -1. So 3 minus 3N plus 1. So ये आ जाएगा 4 minus 3N. सो आपने सारी चीज़ें जो उन्होंने आपसे पूछी थी वो निकाल चुके हो एंड द क्वेश्चन इज डन नाउ, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ A3 विच इज़ -1, A10 विच इज़ -6, AN विच इज़ 4 minus 3N and value of sum of first two term, that means S2, that is 4. So first answer is this. Okay, so I think now you can do any question of sum of n terms. और इसी एक्सरसाइज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. रेशो गिवन हो सकता है क्वेश्चन में SN का, एंड दे कैन फाइंड द रेशो ऑफ n टर्म्स. क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं इसको. A spiral is made up of two successive semicircle. Is made up of two successive semicircle with center alternatively at A and B, starting with center at A, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter. Okay, so
what is the total length of the 13 consecutive semicircle? What is the total length of spiral made up of 13 semicircles? And condition is given that you have to take pi is equals to 22/7. ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्पाइरल है जो किससे बनी है, सेमी सर्कल से बनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है आपका डायग्राम, एंड जो सेंटर्स है वो ए से शुरू होते हैं, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस है, 0.5 डिस्टेंस है। सो यहाँ से ऐसे, देन ये ए है और ये बी है, ठीक है। सो आपका जो रेडियस है, सबसे पहले यू हैव टू टेक द रेडियस इज इक्वल्स टू 0.5, ओके, एंड सेंटर एट ए। फिर आपको सेंटर यहाँ पे लेना है एंड यू हैव टू टेक द रेडियस 1, इट इज गिवन हियर। सो इस बार सेंटर इसको मानोगे तो सेमी सर्कल इस तरह से कुछ बन जाएगा। नाउ सेंटर यहीं पे है, ठीक है। सेंटर इस बार कहाँ पे है, ए बी ऑल्टरनेटिवली है ना, तो इस बार ए पे होगा, और ए पर रखते हुए सेमी सर्कल कितने का बनेगा आपका इस बार, 1.5 का। सो यहाँ से यहाँ तक 0.5 थी, यहाँ से आपने 0.5 का बनाया, फिर आपने ये लिया तो 1, और ये आपका इधर कितना हो गया 1, और जब आप ए को लोगे तो ये कितनी हो जाएगा आपकी 1.5। इस बार अब आपका कौन सा टाइम हो गया, थर्ड टाइम। आप किसको लोगे, अब आप लोगे 2 रेडियस, तो ये आपका कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, और सेंटर से बार आपका फिर से बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। 13 सेमी सर्कल इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल की लेंथ आप दिस 1, देन प्लस दिस, प्लस दिस, देन प्लस दिस, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओगे तो क्या आ जाएगा। सपोज ये लेंथ अगर मैंने L1 सपोज करी है यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ मैंने कितनी एज्यूम करी है L2, और यहाँ से यहाँ तक L3, और रेडियस भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी आ जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन L13। They have asked about the spiral of 13 semicircle, and for this center is at A and R1 is 0.5. For this center is at B, सेंटर से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेंटर अगर आपने चेंज करा है तो सिर्फ ऑल्टरनेटिवली इन्हीं 2 सेंटर से हमारा काम चल रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ पे रख रहे हो तो ये आपका 1 बन जाता है रेडियस, सो 1 के लिए नीचे आ जाएगा, यानी कि हर बार जो आपकी स्पाइरल नीचे आएगा, सेमी सर्कल नीचे आएगा, उसके लिए सेंटर जो होगा आपका बी होगा, और जो आप ऊपर की तरफ फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आपका सेंटर ए होगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर R2 कितना है आपके पास, R2 है 1, R3 कितना है, R3 है 1, तो ये 0.5, ये R3 आपका 1.5, ठीक है। तो फिर R4 आपका 2 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ से ये एक AP फॉर्म कर रहा है विद फर्स्ट टर्म 0.5 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 0.5। सो टोटल लेंथ आपकी आ जाएगी पाई R1 प्लस पाई R2। वाई, बिकॉज दे फॉर्म सेमी सर्किल एंड द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 2 पाई R, सो L इज पाई R प्लस पाई R3 प्लस सो ऑन पाई R13।
So this is equals to, you can take pi common, and this is 0.5 plus 1.5, not 1.5, plus 1 plus 1.5 plus 2 and plus dot dot, so on A13, or you can say R13. So first you have to find the value of R13, or you can find the sum here by applying the formula Sn. Okay, अगर आप R13 निकालना चाहते हो तो फिर फॉर्मूला आप लगा देना n/2 a प्लस एल, बट वो लेंदी पड़ेगा, उससे बेहतर है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना लो आप. डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ सपोज एल से डिनोट हो रही है, पाई हेयर n/2, so 13/2. Sn is n/2 2a plus n minus 1 into d. So 2 into 0.5, because the first term is 0.5, plus n minus 1, 13 minus 1 into d, again 0.5. So, and you have to take the value of pi is 22/7. 1 plus 12 into 0.5, 22/7 into 13/2, and 12 5s are 60. So 6.0 plus 1, 7. So this is cancelled by this, and 2 11s are. So the total length is 11 3s are 33, 11 1s are 11 and 3. This. So the total length of this spiral is 143 centimeter. So this is all for today. We'll discuss more problem on this topic in our next video, and please subscribe, don't forget to share and press the like button. Thank you so much. This is all for today.